Hello everyone, welcome to today's current affairs class. नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्लस करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। Today is 5 February 2026 and we have a jam-packed session today covering major shift in India's economy, massive trade deals with the EU and US, and critical defense updates. If you are preparing for UPSC, SSC or state PCS, this class is a goldmine for you. दोस्तों, आज 5 फरवरी है और आज हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। चाहे वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो, भारत चीन व्यापार का नए रिकॉर्ड हो या फिर रक्षा क्षेत्र की बड़ी खबरें। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Dear friends, instructions for today's class. Dear friends, today's class is partially divided in headlines. Let's overlook the headlines for today's class. Today's class first headline is regarding monetary policy and economy. Second, energy security and trade. Third, infrastructure and transport. Fourth, defense and strategic technology. Fifth, maritime and logistics sector. Sixth, international corporations and institutions. Seven, environment and wildlife. And eighth, sport. And the last nine is global trade impact. Dear friends, before starting the video, I would like to request if you are not subscribed our channel, kindly subscribe our channel and ring the bell icon for early get notifications and select in all. Let's begin the class. Today's class first question is on 4 February 2026. What major decisions did the Reserve Bank of India सिग्नल रिगार्डिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी? 4 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के संबंध में किस प्रमुख निर्णय का संकेत दिया है? आंसर ऑप्शन है इंक्रीज द रेपो रेट। आंसर ऑप्शन बी कोड द रेपो रेट बाय 50 basis points। सी maintain current interest rate, and D, adopt negative interest rate policy. The RBI has decided to maintain the status quo. This means they are not changing the repo rate because while global trade pressurings are easing, the RBI wants to ensure inflation stays informally under control before making any cuts. आरबीआई ने यह स्थिति स्टेटस क्यूस बनाए रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मुख्य कारण है कि यह हालांकि व्यापारिक दबाव कम हो रहा है, लेकिन आरबीआई ने चाहता है कि महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में रहे। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, मेंटेन करेंट इंटरेस्ट रेट। Question number 2. Which sector is India emphasizing to diversify its energy supply following the US-India trade agreement? अमेरिका भारत व्यापार समझौते के बाद ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने के लिए भारत किस क्षेत्र पर जोर दे रहा है? आंसर ऑप्शन है न्यूक्लियर ओनली। आंसर ऑप्शन बी रिन्यूएबल एनर्जी ओनली। सी ऑयल इंपोर्ट्स एंड डी coal exports. To ensure energy security, India is moving away from over dependence on a
few regions after the new US deal. The focus is diversifying oil imports sources. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अब कुछ ही क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिका के साथ हुए हालिया समझौते के बाद अब भारत अपने तेल आयात को स्रोत में विविधता ला रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, ऑयल इंपोर्ट्स। Question number 3. At which locations did Indian Railway launch its first LNG diesel dual fuel demo train? भारतीय रेलवे ने अपनी पहली LNG डीजल ड्यूल फ्लूड डेमो ट्रेन किस स्थान पर शुरू की? आंसर ऑप्शन ए हावड़ा, बी साबरमती, सी पटना एंड डी नागपुर। This is a historical step at Sabarmati. This dual fuel technology will significantly cut down carbon emissions and improve fuel efficiency. यह साबरमती में एक ऐतिहासिक कदम है। यह एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल तकनीक की केवल प्रदूषण कम करेगी बल्कि ईंधन की बचत भी करेगी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला कदम साबरमती में उठाया, जहां एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन को शुरुआत की। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 14. द DRDO recently tested which advanced missile propulsion technology? The DRDO recently tested which advanced missile propulsion technology? DRDO ने हाल ही में किस उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया? आंसर ऑप्शन ए स्क्रैमजेट इंजन, बी सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर रामजेट, सी लिक्विड फ्यूल्ड रामजेट एंड डी हाइब्रिड रॉकेट मोटर। Recently, DRDO, the SFDR, Solid Fuel Detect Ramjet propulsion system is a game changer for long-range air-to-air missiles. It allows missile to intercept target at very high speed and long distance. SFDR तकनीक लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मिसाइल को बहुत तेज गति और लंबी दूरी तक तय करने की शक्ति देती है। सो द रिसेंटली DRDO हैज लॉन्च दिस मिसाइल propulsion टेक्नोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट। Question number 5. Under the Union Budget 2026 and 27, India decided to establish which national maritime entity to strengthen container trade? केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत भारत ने कंटेनर व्यापार को मजबूत करने के लिए किस राष्ट्रीय समुद्री इकाई की स्थापना करने का निर्णय लिया? आंसर ऑप्शन ए इंडिया नेशनल शिपिंग बोर्ड, बी भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, सी इंडियन ओशन फ्रेट अथॉरिटी, डी नेशनल कार्गो कंसोर्टियम। India is focusing on becoming a maritime powerhouse. BCLCL will help us control our container trade. For industrial growth, India has partnered with UNIDO to set up to BRICS Center. भारत एक समुद्री महाशक्ति बनने पर ध्यान दे रहा है। BCSL हमें अपने कंटेनर व्यापार पर बेहतर नियंत्रण देगा। वही औद्योगिक विकास के लिए भारत ने UNIDO के साथ मिलकर ब्रिक्स को स्थापित किया। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, भारत कंटेनर शिपिंग
line. India focusing on becoming a maritime powerhouse, BCSL will help us control our container trade. For industrial growth, India has partnered with United Nations Industrial Development Organization to set up the BRICS Center BCIC। भारत अब एक समुद्री महाशक्ति बनने पर ध्यान दे रहा है। BCSL हमें अपने कंटेनर व्यापार पर बेहतर नियंत्रण देगा। वही औद्योगिक विकास के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ब्रिक्स केंद्र BCIC की स्थापित कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन C is the right answer. United Nations Industrial Development Organization UNIDO. Question number 7. Record bilateral trade between India and China reached approximately how much in 2025? भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार का रिकॉर्ड स्तर 2025 में लगभग कितना था? आंसर ऑप्शन ए 120 मिलियन USD डॉलर। आंसर ऑप्शन बी 155.6 मिलियन US डॉलर। आंसर ऑप्शन सी 200 बिलियन US डॉलर। आंसर ऑप्शन डी 85 बिलियन US डॉलर। Despite border tensions, trade has touched a record high of 155.6 billion US dollar in 2025. This shows the deep economic interdependence between the two nations. सीमा पर तनाव के बावजूद 2025 में दोनों देश के बीच व्यापार 155.5 बिलियन US डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया था। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर 155.6 US बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 18. Which Indian state was reported to have rescued over 1.18 lakh birds under the Corona Abhiyan? Question number 8. Which Indian state was reported to have rescued over 1.18 lakh birds under the Corona Abhiyan? किस भारतीय राज्य ने कोरोना अभियान के तहत 1.18 लाख के अधिक पक्षियों को बचाया है? आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान एंड डी उत्तर प्रदेश। Recently, Gujarat leads in wildlife protections with its Karuna Abhiyan, specially aimed at saving birds injured during festival or by man-made threats. गुजरात ने हाल ही में अपने करुणा अभियान के माध्यम से वन्य जीवों को सुरक्षा में सबसे आगे है। इसके तहत 1.18 लाख से अधिक पक्षियों के जान बचाया है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज B is the right answer, Gujarat. Question number 9. Which Indian shooter won a bronze medal at the Asian Championship with the Indian team securing silver in team events? किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता है, जबकि भारतीय टीम ने टीम संधारवा में रजत पदक हासिल किया? आंसर ऑप्शन ए मनु वाकेर, बी समर्थ राणा, सी सौरभ चौधरी एंड डी अपूर्वी चंदेला। At the Asian Shooting Championship, India marksman Samarth Rana demonstrated exceptional skill by winning the bronze medal in the individual category. Furthermore, the collective effort of the Indian shooting squad resulted in a prestigious team silver medal.
showcasing India's growing dominance in international shooting sports. एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप ने भारतीय निशानबाज सम्राट राणा ने व्यक्तिगत श्रेणी में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त भारतीय शूटिंग टीम के सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप टीम ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीत लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बढ़ावा दबदबे को दर्शाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, सम्राट राणा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज co-hosting the ICC Men's T20 World Cup 2026 with which country? भारत किस देश के साथ आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की सह मेजबानी कर रहा है? आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी साउथ अफ्रीका। The 2026 editions of the ICC Men's T20 World Cup is said to be a major South Asian event. India and Sri Lanka will serve as joint for the tournament, which is scheduled to begin on February 7th. This partnership aims to promote cricket across the region and provide fans with a world-class experience. आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 2026 संस्करण एक प्रमुख दक्षिण एशियाई आयोजन होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका इन टूर्नामेंट का संयुक्त मेजबान को होस्ट होंगे, जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। इस साझेदारी का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देना और प्रशंसकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज B is the right answer, Sri Lanka. Question number 11. In the context of India's foreign trade announcement of yesterday, which controversial match has uncertain due to political tension? कल भारत द्वारा विदेश व्यापार संबंधी की कल भारत द्वारा विदेश व्यापार संबंधी की गई घोषणाओं के संदर्भ में राजनीतिक तनाव के कारण किस विवादास्पद मैच को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है? आंसर ऑप्शन ए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट, बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20, सी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI एंड डी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20। While the World Cup is a celebration of sport, geopolitical issues often spill over into the arena. Currently, the highly anticipated India-Pakistan T20 match faces significant uncertainty. Political tension between the two nations continue to cast a shadow over their bilateral sporting ties, making the scheduling of this specific high voltage class a subject of ongoing debate and doubt. हालांकि विश्व कप खेल का एक उत्सव है, लेकिन अक्सर भू राजनीतिक मुद्दे खेल के मैदान तक पहुंच जाते हैं। वर्तमान में भारत पाकिस्तान T20 मैच को लेकर काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। दोनों देश के बीच राजनीतिक तनाव उनके द्विपक्षीय खेल संबंध पर भारी पड़ रहा है, जिससे इस हाई बैलेंस मैच को आयोजित पर संशय बना हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 मैच। Question number 12. India and the European Union concluded a free trade agreement in late January 2026 after negotiations spanning nearly how many years? भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग कितने वर्षों तक चली बातचीत के बाद जनवरी 2026 के अंत में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए?
Answer option A 5 years, B 10 years, C nearly 20 years, and D 30 years. India and the European Union concluded a free trade agreement in late January 2026 after negotiations spanning nearly about 20 years. भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग 20 वर्षों तक चली बातचीत के बाद जनवरी 2026 के अंत में एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, नियरली 20 years. Question number 13. The ICC Men's T20 World Cup 2026 will feature how many participating teams? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में कितनी टीम भाग लेंगे? आंसर ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 20 एंड डी 24. The 2026 tournament will follow an expanded format to make the game more global. A total of 20 teams will participate, allowing more nations the chance to compete at the highest level of T20 cricket. This includes automatic qualifications for the host India and Sri Lanka and top teams from previous ranking and qualities. खेल को और अधिक वैश्विक बनाने के लिए 2026 का टूर्नामेंट एक विस्तारित प्रारूप है एक्सपांडेड फॉर्मेट का प्लान करेगा. इसमें कुल 20 टीम भाग लेंगी, जिससे अधिक देशों की टी20 क्रिकेट पर उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा. इसमें मेजबान देश भारत और श्रीलंका के साथ पिछली रैंकिंग पर क्वालिफायर की शीर्ष टीम का सीधा प्रवेश मिलेगा. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर 20. क्वेश्चन नंबर 14. Which global organizations administrate the ICC Men's T20 World Cup? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का संचालन कौन सा वैश्विक संगठन करता है? आंसर ऑप्शन ए फीफा, आंसर ऑप्शन बी आईओसी, आंसर ऑप्शन सी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आंसर ऑप्शन डी वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन. The global organization's administration's ICC Men's T20 World Cup was organized by International Cricket Council. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का संचालन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल संगठन करता है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. Question number 15. The India-US tariff deal is expected to have significant impact primarily on which of the following sector? भारत अमेरिका टैरिफ समझौते का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? आंसर ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्सटाइल्स, बी इम्पोर्टेंट ऑफ लग्जरी गुड्स ओनली, सी रिमूवल ऑफ ऑल protectionist measures, D only agricultural export to Europe. The new agreement will significantly boost India automobile and textile export to the USA. इस नए समझौते से अमेरिका का भारतीय ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल पर प्रभाव पड़ रहा है, सो भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर, एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल. Dear friends, that's all for today's current affairs class. Make sure to revise these points and download the PDF for quick revision. If you found this video very helpful, like, share and subscribe to our channel. See you in tomorrow. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.